Good morning, students. Welcome to online class. Students, now today I'm going to sum up the lesson number 1 Indian economy on the eve of independence. So, the topic is briefly the state of Indian economy on the eve of independence. आज हम फर्स्ट लेसन की एंडिंग या उसको सम अप करने लगे हैं. अभी तक हमने इस लेसन के अंदर बहुत कुछ पढ़ा है. हाउ ब्रिटिश इकॉनमी इफेक्ट इंडियन इकॉनमी. ब्रिटेन के लोगों ने इंडियन इकॉनमी को किस तरह से इफेक्ट किया. How they affect on agriculture sector, industrial sector, and so on. As we know, British people entered India by the Battle of Plassey in 1757, and they spent a long time period in India, and finally we got freedom on 15 August 1947. They spent long time period, but when they came here, Indian economy was rich, royal, reputed, prosperous economy, self-sufficient economy, self-reliant economy. But they exploited our economy in different way, and it was a worse condition when they left the India. जो ब्रिटिश के लोग इंडिया छोड़कर गए तो इंडियन इकोनॉमी कंडीशन बहुत वर्स थी. तो फर्स्ट पॉइंट दैट शोज दैट what was the condition of India? It is colonial economy. colonial economy क्या है? colonial economy के अंदर एक strong nation, एक sound nation, एक rich nation, एक poor या weak nation को अपने कंट्रोल में कर लेता है. वो उस इकोनॉमी के सोशल इकोनॉमिक डिसीजन अपने बेनिफिट के लिए लेता है. तो सेम ऐसे ही ब्रिटिश के लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को colonial economy में कन्वर्ट कर दिया. Indian economy was colony of British government. They exploited our economy for their benefit. For example, agriculture was exploited by Jamindari system, and industrial sector was exploited by the discriminatory commercial policies. So Indian economy was colonial economy. Also, Indian economy was at that time known as backward economy on the eve of independence. According to survey report 1947-48, our per capita income is just ₹30 per month. इंडियन इकॉनमी एक बैकवर्ड इकॉनमी बन गई, और बैकवर्ड इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती है इन विच पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो. ये डाटा ₹230 इस बात का एविडेंस है. हमारी इकॉनमी के अंदर हमारी इनकम के सोर्स बहुत कम थे और हमारी इकॉनमी बहुत बैकवर्ड थी. इतनी कम इनकम से पर्सन अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पाता था. दैन इसके अलावा हमारी इकॉनमी के ऊपर एक नया टैग लगाया गया, दैट इज़ अ स्टैग्नेंट इकॉनमी. कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट इकॉनमी. स्टैग्नेंट मीन नो चेंज इन पर कैपिटा इनकम, नो चेंज इन ग्रोथ, नो चेंज इन रेट ऑफ ग्रोथ. इकॉनमी के अंदर स्टैग्नेंट इकॉनमी इज़ वन विच शो लिटल और नो ग्रोथ इन इनकम. एक सर्वे रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया, एट दैट टाइम आवर ग्रोथ रेट इज़ 0.5% पर एनम. At that time population was increasing, and many people were living under below poverty line. Unemployment also increased. Standard of living was in miserable condition because of very low per capita income. So at that time Indian economy was stagnant economy. Also that time our economy is known as semi-feudal economy. It was neither fully feudal or completely capitalist in nature. Feudal relationship exist in the form of landlord-tenant relationship in agriculture sector. Industrial sector was having industries of cotton, jute, and so on. These were converted into capitalist economy. Semi-feudal economy का मीनिंग होता है एक ऐसी इकॉनमी जिसमें जो लैंडलॉर्ड है वो अपने अंडर काम करने वाले पर्सन को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करता है और अपने बेनिफिट्स के लिए उनसे रेंट लेता है. इसी तरह से इंडियन इकॉनमी के अंदर होता है ब्रिटिश पीपल ज़मींदार्स के थ्रू जो फार्मर्स थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, उनसे रेंट लेते थे और उनको एक्सप्लॉइट करते. और देयर वाज नो इश्यू टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एंड इंडस्ट्री की कंडीशन वर्स थी. मॉडर्न इंडस्ट्री बहुत कम थी. हैंडीक्राफ्ट गुड्स की तरफ कोई डेवलपमेंट नहीं थी. उनको तो एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया. और अगर कहीं पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की भी गई तो वो भी कैपिटलिस्ट सेक्टर के थ्रू. वो कुछ एक कंपनीज़ ने अपने प्राइवेट सेक्टर लिया. एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर
गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही, एक ऐसी इकॉनमी बन गई. सो एज एट दैट कंडीशन वी कैन से इंडियन इकॉनमी वॉज सेमी फ्यूडल इकॉनमी. Also in this time Indian economy that was self-reliant before British rule. एक ऐसी इकॉनमी जो ब्रिटिश रूल के समय या उनके आने से पहले अपने पैरों पे खड़ी थी और अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपना सारी डिज़ायर्स अपने ही देश के अंदर पूरा कर लेती थी. बेसिक नीड्स अपने ही कंट्री के अंदर फुलफ़िल हो जाती है. लेकिन जब ब्रिटिश पीपल यहाँ पर आए तो उस इकॉनमी को उन्होंने, जो कभी सेल्फ सफिशेंट हुआ करती थी, उनको डिपेंडेंट कंट्री कर दिया. अब फूड, शेल्टर, क्लोथ, फाइनल गुड्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए इनको दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस टॉपिक, किस तरह से इंडियन इकॉनमी से रॉ मटेरियल बाहर जाता था और ब्रिटेन कंपनीज में फिनिश्ड गुड्स बनकर वापस आता था. तो हमारा रॉ मटेरियल और हमारी ज़रूरत फिनिश गुड्स को पूरा करने के लिए हम किस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड हो गए. सो वी वर इन द कंडीशन ऑफ डिपेंडेंट इकॉनमी. Also at the time of independence Indian economy was depleted economy, or simply we can say depreciated economy. Depleted economy is one which productive capacity decreased due to fall in the stock of capital goods like machine. इंडियन इकॉनमी को डिप्लेटेड इकॉनमी कहा जाता था. एक ऐसी डिप्लेटेड इकॉनमी का मतलब होता है एक इकॉनमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि उनकी मशीनों का लगातार यूज़ होने से उनकी वैल्यू या उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है. या सिंपली वी कैन से लेस कैपिटल गुड्स सो दैट लेस प्रोडक्शन कैपेसिटी. ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार इंडियन इंडस्ट्रीज़, इंडियन वर्कर्स, इंडियन मशीन्स का उनकी कैपेसिटी से कई ज़्यादा यूज़ किया गया ताकि वो वॉर के समय की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें. और इस दौरान अगर कोई मशीन के अंदर कोई नॉर्मल टेयर वेयर हो जाती थी, किसी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था. इसे हमारी मशीनें लगातार टूटती गई, ख़राब होती गई और वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट होती गई. व्हेन ब्रिटिश पीपल लेफ्ट इंडिया तो इंडियन इकॉनमी वाज डिप्लीटेड इकॉनमी. Then last point, that is British people converted our economy into disintegrated economy. लास्ट में जब ब्रिटिश पीपल ने से यहाँ से जाना था तो उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट इकॉनमी का फेस हमारे सामने किया. दैट इज़ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. उन्हें इंडियन इकॉनमी के अंदर हिंदू और मुस्लिम टू कम्युनिटीज़ को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से डिवाइड कर दिया और एंड में हमारे देश का पार्टीशन हुआ. और पार्टीशन के दौरान इंडिया के दो हिस्से बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान. इस कंडीशन में 77% टेरिटरी और 82% पॉपुलेशन इंडिया के हिस्से आई. एक ऐसी कंडीशन में इंडिया आ गया कि इंग्लिश पीपल जाने के बाद हमारे लिए प्रॉब्लम्स आई कि जो लोग पाकिस्तान से डिस्प्लेस होकर आए हैं उनको कहाँ ठहराया जाए, उनके लिए फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ कैसे अरेंज की जाए. मार्केट्स में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, रॉ मटेरियल कम हो गया और हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई. और फाइनली इंडियन इकॉनमी वाज नोन एज डिसइंटीग्रेटेड इकॉनमी इन 1947. Simply we can sum up the lesson. When British people leave our India, Indian economy was colonial economy, backward economy, stagnant economy, semi-feudal economy, dependent economy, डिप्लेटेड इकॉनमी एंड डिसइंटीग्रेटेड इकॉनमी. एक ऐसी इकॉनमी जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत थी. इसीलिए हम नेक्स्ट लेसन जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट द 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए किस तरह से 5 ईयर प्लान्स को बनाया और इससे हमने किस तरह से डेवलपमेंट के पाथ को स्टार्ट किया. सो इट इज़ अबाउट द फर्स्ट लेसन एंड दिस इज़ द समरी ऑफ द लेसन.